Yesterday, bete, we have left the topic where we were discussing what we were discussing, accounting standards and international financial reporting जो उसके standards हैं, right? So we are continuing with the same. This is something which we have already covered. So continuing, okay, from here, the first point we have covered. What is the objective of IASB? IASB क्या है? International Accounting Standards Board. So its objectives were, I have told you what are the objectives, so that the accounting information you provide will be understandable, it should be of high quality, it should be transparent, it should be comparable. What is the meaning of this comparable? Comparable means that the information provided by one company should be equivalent to the information provided by other companies, so that we can compare both the companies and its financial statements, right? But time and again we are giving this message in the group that do join your class well in time. Still some students are popping up on the screen, they want to join the class, and this is already 12 minutes are over. Chaliye, so first objective we have already discussed. The second one is to promote the use and rigorous application of those standards, so that the accounting standard should be used. ठीक है जी, rigorous application of the standards, that everyone should follow some. हम बोलते हैं ना कि for example you are supposed to do some work, हम बोलते हैं नहीं नहीं तरीके से करना है काम, whatever rules are being told to you, ये rules है, इसके accordingly आपने game खेलनी है या कुछ भी activity आपने करनी है. So some rules are being told to you in advance, and then you will start with the functioning. So the same is there. While doing accountancy also, you are supposed to follow some rules and regulations. Okay, next is in fulfillment of the objectives, ऊपर वाले दोनों, to take account as appropriate the special needs of the small and medium sized entities. Entities तो सबको clear है, मैं रोज ही बताती हूँ आपको. Small and medium sized entities means जो छोटे size के business होते हैं, उनकी needs को भी ध्यान में रखा है. जब accounting standards बनाए ना, उन्होंने देखा कि बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है, छोटी में ऐसा होता है, तो दोनों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए. ठीक है, एंड कीपिंग इन लाइक माइंड द नीड्स ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमीज. इमर्जिंग इकोनॉमीज कौन सी होती है? द इकोनॉमीज विच आर डेवलपिंग, द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज जो है, उनकी इकोनॉमीज की क्या नीड्स है, उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये इंटरनेशनल हम पढ़ रहे हैं ना, तो उन्होंने सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को नहीं देखा कि अमेरिका है या जापान है, उनके अकाउंट्स कैसे है. नो, ऑल द अदर कंट्रीज where the people are less educated, where the accountants may not have any accounting standards. जैसे इंडिया में we have Indian accounting standards, but in many countries जो बहुत underdeveloped countries हैं, उनमें अपने accounting standards नहीं हो सकते. तो मे बी उन कंट्रीज में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही फॉलो किए जा रहे हो. ठीक है, जैसे कुछ कंट्रीज होती है ना, उनकी अपनी कोई लैंग्वेज, अपनी कोई थ्योरी, अपनी कोई हिस्ट्री नहीं होती है, मतलब दे डोंट हैव अ फुल फ्लेज सब्जेक्ट. जैसे इंडिया में हमारे संस्कृत से हमारी जो लैंग्वेज, जो स्टडीज है उसका, उसकी बिगिनिंग हुई संस्कृत, एंड देन हिंदी, एंड देन वी हैव ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस. वी आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन एनी फॉरेन कंट्री टू गिव अस अ कल्चरल हेरिटेज. वी ऑलरेडी हैव वन, बट इन सम अदर कंट्रीज देयर मे बी द प्रॉब्लम, जहां पे शुरू से ही कोई कंट्री डेवलप ही नहीं हो पाई, मतलब स्लेवरी में रही ज्यादा टाइम, या फॉर एनी रीजन XYZ. सो दोज कंट्रीज मे बी अडेप्टिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है जी. उसके बाद है नेक्स्ट है टू ब्रिंग आउट द convergence of national accounting standards and international financial reporting standards to high quality solution. समझ गए? एक इन्होंने बोले नेशनल और दूसरे बोले इंटरनेशनल. नेशनल मतलब फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया के, इंटरनेशनल जो इनके, तो उनको आपस में कोरिलेट किया जाए, सो दैट जो इंडिया में अकाउंट्स बने हो वो फॉरेन कंट्री में अगर कहीं हम सेंड करें तो उनको भी समझ आ जाए, और अगर फॉरेन कंट्री में कहीं बने हो यहाँ पे आए या अकाउंटेंट शिफ्ट करें तो दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. इट शुड बी लाइक
समवेयर इक्विवेलेंट होने चाहिए, ठीक है। यू मे नो कॉल सेंटर्स, आपको पता है कॉल सेंटर्स वाले क्या करते हैं, they used to provide the services of like calling to the other people for any queries, जैसे जो हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं अपने कंट्री में, तो हमारे पास तो इंडियन ही लोग फोन उठाते, बट इन फॉरेन कंट्रीज they most of the countries, most of the companies, they have their call centers here in India. फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की कोई बहुत अच्छी कंपनी है, उन्होंने लेकिन अपना कॉल सेंटर का काम इंडिया के लोगों को दिया हुआ है। Why it is given? There may be XYZ so many reasons, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है, इंडिया में सैलरी कम देनी पड़ती है, तो इंडियंस को वो हायर कर लेते हैं इस काम के लिए। मतलब इंडियन बंदा रहेगा इंडिया में, लेकिन उनका कॉल सेंटर चला रहा है। कॉल सेंटर मीन्स वहां पे किसी भी कंपनी का लगा लो, मान लो आईफोन कंपनी का कस्टमर केयर सेंटर है, तो उसका फोन लगाएगा बंदा, अमेरिकन बंदा अमेरिका में, कॉल आके लगेगी इंडिया में, और इंडिया का बंदा यहाँ पे बैठ के उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट करता है। इसी तरह से ये तो एक एग्जांपल थी कॉल सेंटर की। सिमिलरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज, यू नो दिस इज अ फैक्ट, in the world most of the major companies, they are sending their accounts to India. In this country we have a number of brilliant accountants, the accountants who are maintaining accounts of foreign countries की जो कंपनीज हैं वो अपने अकाउंट सारे इंडिया भेज देते, इंडिया में अकाउंटेंट बैठा पूरे अकाउंट्स मेंटेन करता है, वापस उनको भेज देता है। हाउ ही कैन बी एबल टू डू दिस if we will be following Indian accounting standards? No, then it means that accountant is following what? International financial reporting standards. तो more or less होते तो सेम ही है, but they are supposed to follow these standards, ठीक है। तो this is also a work, अगर आपको नहीं पता है 12th करने के बाद अकाउंटेंसी में एक्सपर्टीज लेने के बाद, अकाउंटेंट या सीए करने के बाद, this is another job opportunity, work from home जिसको हम कहते हैं। ये नॉट ड्यूरिंग कोविड, बिफोर दैट ऑल्सो घर पे बैठे लाखों रुपए आपकी सैलरी हो सकती है। यू आर जस्ट सपोज्ड टू मेंटेन अकाउंट्स ऑन लैपटॉप, दैट्स ऑल व्हाट यू नीड। आपका दिमाग और लैपटॉप, और कुछ नहीं चाहिए, कोई कमरा नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, सो लेट्स रीड इट्स मीनिंग। IFRS इज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, किसने डेवलप किए हैं? IASB ने डेवलप किए हैं। व्हाट इज IASB? It is International Accounting Standards Board. The International Accounting Standard setting body है ये एक ऐसी body है जो क्या करती है? International Accounting Standards बनाती है। The standards issued by IASB are based on sound and clearly stated principles. ये जो standards हैं ये कौन issue करता है? ये IASB issue करता है, ठीक है जी। और किसके ऊपर based होते हैं वो accounting standards? किस पे based होते हैं? जो हमने principles पढ़े हैं ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन पढ़े, उन्हीं के ऊपर बेस्ड, उन्हीं को मॉडिफाई करके ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आई टोल्ड यू कितना इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद इन्होंने आगे दिया कौन कौन सी कमेटीज में काम करती है। नंबर 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, एंड द अदर वन इज स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी मींस one committee, they will formulate some accounting standard, the other one is interpreting it and converting it into some other understandable means. Okay, so Hardik Gupta is also trying to enter the class. Hardik Gupta, bache, this is again I am repeating myself, do join your class well in time. This is my last warning. After this time, like from today, from this point of time, I'm not going to allow, see, one more child is there. Harman was already in the class. See, this is the last time I have told you, I am not going to enter any one of you in the class once class is going on. I'm going to lock the meeting. Whosoever is left is left. Like, it's not done. 7:30 your class is going to, like, it's starting, and 7:50 children are joining. So casual approach. I don't understand why you people are here. Okay, IASE had issued how many standards they have issued? Important question. 1 mark. IASE ने कितने standards issue किए? 41 standards issue किए, ठीक है जी। और framework for the preparation and presentation of financial statement.
किसके लिए दिए 41 स्टैंडर्ड्स दिए हैं? ताकि जो फाइनल अकाउंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाओ वो इसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। 41 स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड समझते हो, मतलब कि मींस दिए कि किस तरह से बनानी है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट की, यू नो व्हाट इज बैलेंस शीट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। बैलेंस शीट को बनाने का एक तरीका ये होता है कि हम इधर करते हैं लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ये मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ कि हम इस तरफ सारे एसेट्स लिख देते हैं, इस तरफ सारी लायबिलिटीज लिख देते हैं। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग अकाउंट्स। The other preparing balance sheet. The other way to prepare balance sheet is, अच्छा, this method is called as horizontal balance sheet. इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम horizontal balance sheet बोलते हैं। horizontal क्या होता है? ऐसे साइड बाय साइड। सो साइड बाय साइड है, लायबिलिटी इधर है, एसेट्स इधर है, horizontal balance sheet चल रही है। The other is वर्टिकल बैलेंस शीट। व्हाट इज वर्टिकल बैलेंस शीट? जिसमें लायबिलिटीज ऊपर होती हैं, लायबिलिटीज अमाउंट, मान लो यहाँ पे टोटल हो गया, उसके नीचे एसेट्स एंड इट्स अमाउंट, फिर उसका टोटल हो गया। तो दिस टाइप ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड एज, बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। इसका फॉर्मेट है, आगे आप +2 में पढ़ोगे, थोड़ा +1 में भी पढ़ोगे। +1 में हम ये वाला पढ़ेंगे, ये वाला +2 में पढ़ेंगे, दोनों मेथड्स है। देयर आर टू वेज ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। दिस वन इज हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट एंड दिस वन इज व्हिच बैलेंस शीट? वर्टिकल बैलेंस शीट इसको हम कहते हैं। वर्टिकल हम क्यों कहते हैं? व्हाट इज वर्टिकल? अप एंड डाउन। सो अप इज द लायबिलिटी एंड डाउन इज द एसेट्स। ठीक है। So accounting standards हमें क्या बताते हैं? Accounting standards will tell you how to prepare your balance sheet. ऐसे बनानी है कि ऐसे बनानी है? Who will tell? Accounting standard. इंडिया में जो कंपनीज एक्ट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, नीचे वाली बैलेंस शीट बताते हैं। IFRS के जो बैलेंस शीट की स्टैंडर्ड्स है वो पता नहीं हमें कौन सी बताते होंगे, वो उसमें हम पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन सी। सिमिलरली, मतलब ये मैंने एक एग्जांपल दी, 41 इन्होंने बोला स्टैंडर्ड्स आर देयर, अकॉर्डिंग टू दोज 41 स्टैंडर्ड्स, कि यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, ये सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें बताएगा। ऐसे नहीं रैंडम मूड आ तो कोई भी लायबिलिटी ऊपर लिख दो, कोई भी एसेट्स लिख दो। नो, वी विल बी टोल्ड व्हाट टू राइट हियर एंड व्हाट टू राइट देयर, राइट। आगे लिखा है, व्हाट इज दिस 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। किसकी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती है? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है जी। आउट ऑफ विच कहता है जो 12 है ना, 12 IAS have been superseded and a large number of them has been revised. उनके जो मतलब 12 जो प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो एक दूसरे को, जैसे होता है ना कि बार एक प्रिंसिपल दूसरे को ओवरलैप कर रहा है या उसको वो कुछ अलग तरह से इंटरप्रेट करता है, तो उसको रिवाइज किया गया एंड देन द स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी ने उसको इंटरप्रेट करके कुछ और फॉर्म में बना दिया। उसके बाद द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स issued by SIC are described as SIC1 and SIC2 etc. इनको SIC के नाम से बोला जाता है, जो उनकी इंटरप्रिटेशन कमेटी ने फाइनलाइज किए। हमें उसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन मिल गई दैट्स इनफ। लेट्स कम डाउन एंड रीड व्हाट आर द assumptions of IFRS. IFRS बनाने के लिए क्या assumptions ली गई? Accrual basis we have already studied. You know what is accrual basis? Any one of you can raise your hand so that I can let you explain. Accrual assumption. Okay, Sifat Preet can explain. Yes, Viti. मैम, जब हम मतलब जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन होती है उसी टाइम पे उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होता है, चाहे हमें कैश मिला हो या ना मिला हो। Okay. So whenever a transaction takes place, we will record it, even though the money is being received or not received. Very good. It is accrual basis, means due basis pay. Number 2 is going concern assumption. Who will explain?
नो वन। गोइंग कंसर्न इतना इजी है, ओनली सिफत प्रीत नोज। बाकी सारे बच्चे क्लास में सोते हैं क्या? व्हाई यू पीपल आर नॉट एट ऑल एक्टिव? यस सिफत प्रीत, यू कैन एक्सप्लेन अगेन। मैम वी अज्यूम दैट जो बिजनेस है हमारा ज़्यादा टाइम के लिए चलेगा, इसीलिए हम अपने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स और लॉसेस को एस्टिमेट करते हैं और एसेट्स की वैल्यू भी उस हिसाब से रिकॉर्ड की जाती है। यस यस डेफिनेटली, कि हमारा जो बिजनेस है वो एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलता है, इसीलिए हम एसेट्स पे अपने 10 साल 20 साल इस तरह से लिखते हैं। थर्ड वन इज मेजरिंग यूनिट। मेजरिंग यूनिट यू रिमेंबर? मेजरिंग यूनिट मतलब कि कैसे मेजर करना है, ये हमने शायद नहीं डिस्कस किया था। एक हमने पॉइंट पढ़ा था हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, उसमें हमने पढ़ा कि जो भी हमने एसेट्स लिखने हैं हमने उसको किस पे मेजर करना है, कॉस्ट पे, जितनी हमको कॉस्ट पड़ी। तो इनकी अपनी मेजरिंग यूनिट है IFRS की। देयर आर डिफरेंट मेथड्स, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू, सो दे विल explain what value is to be used and where to be used. So measuring unit assumption is there कि how do they value the मतलब वैल्यू कैसे करनी है कैपिटल की। सी इन्होंने लिखा है कि इट मींस द एसेट शुड बी रिफ्लेक्टेड एट करंट वैल्यू, दैट इज द फेयर वैल्यू। हमारे इंडिया में तो नहीं ना होता ऐसा, इंडिया में ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता, हमारा अपना रूल है। हमारा रूल क्या है, कॉस्ट पे रखना है। इनका रूल क्या है, फेयर वैल्यू पे रखना है। बट इस फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू होती है कि आज की डेट में अगर हम उसको बेचे तो कोई बंदा कितने पैसे में लेने को तैयार है उसको, वो होती है उसकी फेयर वैल्यू। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू IFRS, नॉट अकॉर्डिंग टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट परचेजिंग पावर अजम्पशन। कांस्टेंट परचेजिंग पावर अजम्पशन का मतलब क्या होता है, जैसे मनी की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है इन्फ्लेशन के बेसिस पे, तो इनका एक अजम्पशन ये भी है कि जो भी इनकी वैल्यू होगी ना चीज की, उसको ये इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं, उसको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कहते हैं। हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इसके बारे में एक अलग सेट ऑफ अकाउंटिंग है, बट वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो बड़े हायर लेवल पे पढ़ा जाता है, +1 क्लास में हम उसको नहीं पढ़ते हैं। तो व्हाट इज दैट, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने लैंड खरीदी 5 लाख की, महंगाई बढ़ गई है 10%, तो 5 लाख का 10% ऐड कर दो 50,000। तो हम अपने बुक्स में, हम इंडिया में नहीं, IFRS के अकॉर्डिंगली हम अपने बुक्स में लैंड की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 5 लाख प्लस 50,000, 550, 5,50,000। ठीक है जी, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली अपने एसेट्स की वैल्यू को एडजस्ट कर देना है, ये IFRS का प्रिंसिपल। ठीक है जी, आपको ऐसे ही बता दिया, इट इज नॉट टू बी यूज्ड हियर राइट नाउ, हमने अभी यूज नहीं करना है उसको। ठीक है, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ IFRS कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है इंडिया में? 2 होती है, मैंने तुम्हें बताई नहीं है। कौन सी 2 होती है हमारी, एनीवन कैन टेल मी, कौन सी 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं? अकाउंटिंग साइकिल में बताया था, जो साइकिल पढ़ा था हमने, 2 स्टेटमेंट्स जिसको फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। सिर्फ सिफत प्रीत को बताए, बाकी सब सोए हैं। ओके, हरमन वांट्स टू, यस हरमन यू कैन आंसर। मैम एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और द सेकंड नहीं पता। ये कौन सी है, मैंने तो बताई नहीं कभी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहां से है। मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल पढ़ाया था, अकाउंटिंग की प्रोसेस, कॉपी में खोलो जरा सारे, टेक आउट योर नोटबुक, हरी अप, check it out from there where I have told you how to prepare accounting cycle. अकाउंटिंग साइकिल में जहां फाइनल अकाउंट समरी वाला पॉइंट था, समरी वाला पॉइंट है उसमें देखो, अंशुल वांट्स टू आंसर, यस अंशुल। अंशुल बेटे यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अंशुल सेठी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। क्या हुआ, हो नहीं रहा आपसे? बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, 2 ही तो बताए थे आपको, क्या हो गया? एक आपको बताई थी बैलेंस शीट बनानी है, जो मैंने यहाँ बोर्ड पे भी बनाई है, और दूसरी आपको मैंने बताई थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? फ्रॉम वेयर वी विल कम टू नो अबाउट द इनकम ऑफ द बिजनेस। सो फर्स्ट वन देखो वही है, थोड़ा सा नाम का फर्क है। फर्स्ट वन फाइनेंशियल पोजीशन बताती, फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन इज बीइंग टोल्ड बाय बैलेंस शीट, और उस बैलेंस शीट में 3 चीजें होती हैं, एक हमारे एसेट्स,
एक हमारी लाइबिलिटीज और तीसरी हमारी इक्विटी। इक्विटी मतलब कैपिटल का दूसरा नाम इक्विटी होता है। किसका नाम होता है आप लिख लीजिए, यहाँ पे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इक्विटी किसको कहते हैं? जो ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में उसको इक्विटी कहते हैं। तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगी, यहाँ देख लीजिए, एसेट्स में तो मैं सारे एसेट्स लिख दूंगी, लायबिलिटी वाली साइड में लायबिलिटी भी लिखूंगी और मैं कैपिटल भी लिखती हूँ। हम इंडिया में उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? कैपिटल वर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, सिंपली। जब हम आगे +2 में पढ़ेंगे तो हम कैपिटल को इक्विटी वर्ड से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि तब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला ये जो पॉइंट इन्होंने लिखा है, व्हाट दे वांट टू राइट हियर, बेसिकली दे वांट टू राइट हियर, व्हाट दे वांट टू राइट हियर, यहां लिख देते हैं, दे वांट टू राइट बैलेंस शीट। ठीक है जी, दिस पॉइंट मीन्स बैलेंस शीट। ये वाला जो पहला पॉइंट है, ये किसका नाम है? ये बैलेंस शीट का नाम है। दूसरा पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या बता रहा है हमको? दो चीजें बता रहा है, देखो उन्होंने शो किया। एक तो हमें बता रहा है रेवेन्यू और एक्सपेंस, और हम उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं अभी बताया एक बच्चे ने, हम उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बताता है बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें दो चीजें बताता है। एक तो हमें बताता है कि कितना रेवेन्यू हुआ हमारा ड्यूरिंग द ईयर, हाउ मच रेवेन्यू वी हैव अर्न्ड। रेवेन्यू मतलब इनकम। और दूसरा हमें बताता है हाउ मच एक्सपेंसेस वी हैव इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितने खर्चे हुए, एक्सपेंसेस बताता है। तो दो चीजें जो है हमें बताता है हु, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, उसके अलावा, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसके अलावा आईएफआरएस में 3 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो बनती, इंडिया में भी बनती है सेम, एग्जैक्टली सेम, इसलिए अभी समझा रही हूँ। फर्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी समझते हो ना, अभी बताया आपको। इक्विटी मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी? लिख लीजिए एक लाइन में, द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स इन द बिजनेस, उसको इक्विटी कहते हैं, जिसको कैपिटल भी कहते हैं। मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स इन द बिजनेस इज इक्विटी। एक और स्टेटमेंट होती है जिसमें कैश फ्लो पता चलता है। कैश फ्लो मतलब कितना कैश आया, कितना कैश गया, वो इंडियन स्टैंडर्ड्स में भी बनता है। हम आगे इसको 12th क्लास के सिलेबस में हमारे ये है, +1 में नहीं है, इसलिए मैंने अभी आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया। और लास्ट है नोट्स। नोट्स क्या होते हैं? जब आप अपने अकाउंट्स बनाते हो उसके लिए एक्स्ट्रा आप नोट्स लिखते हैं कि ये हमारी हाईलाइटेड स्टेटमेंट्स हैं, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हमने फॉलो की, सिग्निफिकेंट, उसके बारे में आप डिटेलिंग एक दे देते हो रिपोर्टिंग के टाइम पे। एक्स्ट्रा एक जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल तुम्हारा रिजल्ट आया तो रिपोर्ट कार्ड होता है, उसमें नंबर तो होते ही है, नीचे कुछ रिमार्क्स भी देता है टीचर, वही है ये नोट्स। तो नोट्स आर आल्सो बीइंग प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस। क्लियर है बेटे? These all things are just for your information. थोड़ा थोड़ा इसको आपने लिख लेना है कॉपी में, ओवरव्यू, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और चीज दी हुई है इन्होंने, देयर आर डिफरेंट मेजर्स, मतलब अलग अलग तरीके हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, मतलब क्या बताऊं, एसेट्स को मेजर करने की। फर्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट। आपको पता है क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है जितने में आपने उस चीज को खरीदा है। ये लिखा है ना, कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर देम। कंसिडरेशन का मतलब होता है जो दिया बदले में। तो व्हाटएवर यू हैव गिवन टू एक्वायर दैट एसेट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट। नंबर 2 इज करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट क्या होती है? जो करंटली आज की डेट में मार्केट में जो उसका प्राइस चल रहा होगा वो। ठीक है, करंट समझते हो आज की डेट में। थर्ड इज रीजनेबल वैल्यू। रीजनेबल वैल्यू होता है अगर आप अपने उस एसेट को बेचते हो तो वो कितने में उसकी सेटलमेंट होगी। जैसे मान लो कि अपना पुराना मोबाइल फोन दे के मैं नया फोन लेना चाहती हूँ, तो वो कहता फोन तेरा जितने का भी है, मान लो ये फोन था 15,000 का, पर अगर तुम बेचोगे तो 5,000 मिलेंगे, लेकिन अगर तुम रिप्लेस कराओगे तो 8,000। सो दैट इज रिप्लेसमेंट वैल्यू, उसकी रिलाइजेबल सेटलमेंट वैल्यू है। ठीक है जी, यहाँ लिखा होगा
अगर हम उसके बदले में कुछ डिस्पोज कराना चाहते हैं, जैसे कुछ सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, अगर हमारा कोई उधार है, कोई लाइबिलिटी, हमने उसको सेटल कराना, हम कहते हैं ये देख 50,000 तेरे हमने देने, हम नहीं दे सकते, तुम ऐसे करो हमारा स्कूटर ले जाओ। तो हमारा स्कूटर कितने का मतलब बिका इस हिसाब से 50,000 का, क्योंकि उस स्कूटर ने हमारे 50,000 की लाइबिलिटी वो करवा दी। ठीक है जी। उसके बाद है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू होती है आज की डेट में वो चीज नहीं लेनी हो तो मार्केट में कितने की है उसको उसकी प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू भी सेम ही एक्सचेंजेबल। अगर हमने उसको दे के नई मशीन लेनी है, कोई मशीन पुरानी मशीन दे के नई मशीन लेनी है, तो वो फेयर वैल्यू। तो हमारे इंडिया में ये सारे फॉलो नहीं होते। इंडिया में एक ही चीज लगती है, कौन सी? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे इंडिया में लगती है। और आईएफआरएस के अंदर कौन सी वैल्यू लगती है? फेयर वैल्यू लगती है, जितने में वो एसेट किसी दूसरे एसेट के बदले में एक्सचेंज हो सकता है या किसी लाइबिलिटी को सेटल कर सकता है। दैट इज ऑल। उसके बाद है डिफरेंस क्या है आईएफआरएस और ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। नंबर 1, जो आईएफआरएस ने दिए वो प्रिंसिपल्स हैं और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे रूल बेस्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेसिकली? तो IFRS बेटे इट इज दीज आर द प्रिंसिपल्स, दीज आर द गाइडलाइंस, इसके अकॉर्डिंगली आप काम करते हो। लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो रूल बेस्ड है। वो आपको पर्टिकुलर, ये देखो जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दी है यहाँ पे, कहता इंडिया में शेड्यूल दिया गया है जो कंपनीज एक्ट ने बनाया है 2013 में, जिसके अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट शुड बी प्रिपेयर्ड। आप अपनी बैलेंस शीट को अपनी मर्जी से कुछ भी लेफ्ट में, कुछ भी राइट में, कुछ भी अप एंड डाउन ऐसा नहीं लिख सकते हो। जैसा शेड्यूल आपको बताया गया है, जो फॉर्मेट दिया है, जिस सीक्वेंस में आइटम्स लिखनी वैसे ही आप लिखते हो। दिस इज व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टोल्ड अस। इंडियन लॉज हमारे ये कहते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने इसकी एग्जांपल ही लिखी है, बस पहली लाइन याद करनी है आपने, बीच वाला जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज आईएफआरएस आर बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आईएफआरएस किसके ऊपर बेस्ड है? फेयर वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। और हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके ऊपर बेस्ड है? इन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है जी, चलिए 2 पॉइंट क्लियर है। ये 1 मार्क में ये आपको पूछा जा सकता है, कोई भी 2 डिफरेंस बताओ, 2 ही डिफरेंस है आपके हो गए। उसके बाद कुछ और इन्होंने आइटम्स लिखी है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा हमें भी समझ भी नहीं आएंगे क्योंकि हम इसको यूज ही नहीं कर रहे। उसके बाद आ गया इंडिया एंड आईएफआरएस। इंडिया में वी हैव कहता 2 ऑप्शंस, या तो वी कैन अडॉप्ट आईएफआरएस और वी कैन अडॉप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इंडिया ने दिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो बोथ आर द ऑप्शंस। आपके पास बुक में मैंने इसके आगे पीडीएफ भी नहीं बनाई है, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर बीइंग गिवन उसको IND-AS के नाम से बोलते हैं। दे आर एग्जैक्टली सेम। अगर आप उसको खोलोगे you will get the same information which we have studied yesterday from here। ये पढ़ा था ना हमने, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, तो यही सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आईएफआरएस के यही सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने अभी पढ़ी, ये स्टेटमेंट ऑफ ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, यही सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, नया उसमें कुछ भी नहीं है। चाहत नाम का कोई बच्चा is trying to join the class right now. Do you think it is the right time to join the class?